سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، جیسا کہ آپ کو اس حقیقت کا بخوب علم ہے کہ دین اسلام میں دو بڑی تشریحات ہیں، یا دین اسلام میں اسلامی تعلیمات کی تشریح کے اعتبار سے دو بڑی شاخیں ہیں، جن میں سے ایک اہل شیعہ ہیں اور دوسرے اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے دوران امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد اپنا جانشین اور امت مسلمہ کا امام مقرر فرمایا تھا۔ مذہب شیعہ کی یہ بنیاد ہے کہ وہ حضور اکرم کے بعد عقیدہ امامت پہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اسماعیلیوں کا تعلق اسی شیعہ طریقے سے ہے، شیعہ شاخ سے ہے، جو مانتے ہیں کہ امام روئے زمین پر ہمیشہ حاضر و موجود ہونا چاہیے، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حالات بدلیں دین پر عمل کرنے کے لیے زمانے کے امام کی طرف سے ہدایت ملتی رہے۔ امام زمان مریدوں کی روحانی فلاح و بہبود کے لیے وقت کے مطابق ہدایت فرماتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے اپنے گنانوں میں امام کے لیے جو مختلف تشبیہات، جو مختلف مثالیں استعمال فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام ایک مالی کی طرح ہے، ایک باغبان کی طرح ہے۔ ایک باغبان کا کام ہوتا ہے کہ وہ باغیچے کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ باغیچے کو سیراب کرتا ہے، ضرورت کے مطابق پانی دیتا ہے، جنگلی جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی شاخ، کوئی درخت ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا ہے یا بڑھ گئی ہے تو اس کو قطع برید کر کے باغیچے کی جو خوبصورتی ہے اس کو برقرار رکھے، اور اگر کوئی جنگلی پودے وغیرہ نکل آئے تو اسے نکال باہر پھینکے تاکہ باغیچے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیلی طریقے میں وقت کے مطابق تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ تبدیلیاں اصولوں میں نہیں ہوتی ہیں، تبدیلیاں فروعات میں ہوتی ہے۔ تبدیلی اسپرٹ میں نہیں ہوتی ہے، تبدیلی فارم میں ہوتی ہے۔ تبدیلی باطن میں نہیں ہوتی ہے، ظاہر میں ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اس کی زندگی پوری ہونے تک اس کا جو باطن ہے، اس کی روح ہے، وہ نہیں بدلتی، لیکن شکل و صورت اس کا ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ، عمر بڑھنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسماعیلی طریقے کا جو فارم ہے، اسماعیلی طریقے کا جو ظاہر ہے، وہ زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق بدلتا رہتا ہے، اور ہمارے طریقے میں مریدوں کی جانب سے جو ایک بات کی توقع کی گئی ہے اور جو مریدوں پہ فرض کے طور پر عائد کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مرید زمانے کے امام کی مکمل تابعداری اور فرمان برداری کا قول دیتا ہے، جس کے بعد ہی وہ اسماعیلی طریقے میں داخل ہوتا ہے، جسے ہم بیعت کہتے ہیں۔ بیعت وہ رسم ہے، وہ عمل ہے جس کی بجاوری سے ایک شخص اسماعیلی طریقے میں داخل ہوتا ہے، اور اس بیعت کے ذریعہ اسماعیلی بنتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ میں زمانے کے امام کی مکمل تابعداری کا قول دیتا ہوں، اپنا تن من دھن زمانے کے امام کے حوالے کرتا ہوں، اور امام کے فرمان کے مقابلے میں اپنی شخصی آزادی کو میں سرنڈر کرتا ہوں، امام کے حوالے کرتا ہوں۔
इसके बाद ही इस्माइली तरीका सही तौर पे चल सकता है और चलता है। और इसी वजह से जब जमाने के इमाम की तरफ से इरशादात आते हैं, फरामीन आते हैं, तो फिर मुरीद ये जानता है कि उसमें हमारी तरफ से चूं चरा करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने जमाने के इमाम को बैयत दी है। यहां एक सवाल पैदा हो सकता है जिसकी मैं वजाहत करना चाहता हूं। हम सब यही कहेंगे कि आपने बैयत की बात तो की, लेकिन बैयत तो हमने उस वक्त की है जबकि हम बहुत छोटे थे, हमारे माँ बाप हमें गोद में उठा के मुक्की के पास ले आए या इमाम की हुजूर में ले आए, हमने इमाम की बैयत कर ली, हमें क्या पता कि हमने क्या कहा। दीनदारों, वो तो महज एक रस्म अदा की जाती है जो बचपन में पैदाइश के फौरन बाद कर लेना जरूरी है। क्या ये मुमकिन है कि हम अपने बच्चों को जवान होने तक इंतजार करें कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इमाम की बैयत करना चाहे तो करे? इस तरह तो हम अपने घर में जवान होने तक एक गैर इस्माइली बच्चे की परवरिश करेंगे। तो इस्माइली बनने के लिए लाजमी है कि बचपन ही में पैदाइश के फौरन बाद जमाने के इमाम की बैयत करे। लेकिन बालिग होने के बाद अगर कोई शख्स ये समझता है कि मुझे जमाने के इमाम के फरमान की ताबेदारी नहीं करनी है, तो उसके पैरों में कोई जंजीरें नहीं बंधी हुई है। हम सब जो जमाने के इमाम की ताबेदारी करते हैं, इसी बुनियाद पे करते हैं कि हमने अपनी आजादाना राय से अपनी मर्जी के मुताबिक जमाने के इमाम को अपनी बैयत दी है, और जमाने के इमाम का कौल, जमाने के इमाम का फरमान हमने अपनी सर आंखों पे लिया है। तो जब जब वक्त बदलता है और इमाम की तरफ से तब्दीलियां आती है, उससे एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए दीनदारों, हम जमाने के इमाम को अपना रूहानी माँ बाप तस्लीम करते हैं, हम जमाने के इमाम को अपना रूहानी तबीब, अपना रूहानी डॉक्टर तस्लीम करते हैं। मौला का फरमान है, जब लोग जाहिरी दुनियावी छोटे छोटे मसाइल, पेट में दर्द और सर में दर्द, आंखों में दर्द, ये मसाइल लेके जब इमाम के हुजूर में जाते थे, तो मौला ने फरमाया, देखो हम 7वें आसमान से चल के दुनिया में तुम्हारी डॉक्टरी करने के वास्ते नहीं आए हैं। मुर्शिद को डॉक्टर बनाना ऐब की बात है। देखो हम तो 7वें आसमान से तुम्हारी रूहों की नजात के वास्ते आए हैं। तो इमाम का सबसे बड़ा काम रूहों को नजात देना है। इमाम हमारे रूहानी तबीब हैं। अगर इमाम रूहानी तबीब हैं तो इमाम रूहानी इलाज भी बताते हैं और परहेज भी बताते हैं। एक दफा हमने इमाम को तबीब तस्लीम किया है तो हम ये जान ले कि हमारे मर्ज का इल्म इमाम के पास है। कौन सी दवा हमारे लिए मुफीद है वो इमाम तजवीज करेंगे, और कौन सा काम हमारे लिए मुज़िर है, कौन सा काम नुकसानदेह है, उसकी निशानदेही भी इमाम खुद करेंगे। इसलिए मुरीदों को चाहिए कि जब जमाने के इमाम का जैसा फरमान हो उसे तस्लीम करे और उसमें ये अकल न दौड़ाए, समझने की कोशिश जरूर करे, लेकिन ये एतराज न करे इमाम ने ऐसा क्यों किया है, या एक दफा इमाम के मना करने के बाद फिर उस अमल को अंजाम न दे, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल यही करने के मुतरादिफ होगा कि डॉक्टर ने अगर कुछ परहेजी बताई है तो हम वो परहेज न करें और अपनी मर्जी के मुताबिक खाना पीना खाएं, और फिर जब बीमारी बढ़े तो फिर कहीं और दौड़ते हुए जाएं। जिंदारो, मौला का इरशाद है, मौला का एक फरमान आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। दारुस्सलाम 1948 का फरमान है, हकीकत में सब इस्माइली इदारे और रसूमात मौजूदा वक्त के लिए बनाए गए हैं। सब इस्माइली इदारे और रसूमात मौजूदा वक्त के लिए बनाए गए हैं। इस वजह से इस्माइलियों में हाजिर इमाम का अकीदा है, और हाजिर इमाम हालात के मुताबिक अपने मुरीदों की रूहानी और आला जिंदगी के लिए उनमें तब्दीलियां करते रहते हैं। जिस तरह एक बच्चे की खुराक बिल्कुल बचपन में और होती है, जो जो उम्र बढ़ती जाती है उसके खुराक में तब्दीली आती है।
जवान होता है तो खुराक बदलता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे रूहानी इर्तिका के लिए और आला जिंदगी के लिए किस जमाने में किस चीज की जरूरत है करने की और किस चीज को न करना लाजमी है, वो इमाम बताते हैं। और मौला फरमाते हैं यही काम इमाम का है। और टांजानिया में मौलाना हाजिर इमाम ने भी यही फरमान फरमाया था कि इस्माइलियों के पास हाजिर इमाम है और हमारा ये अकीदा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जमाने के इमाम का काम है कि वो तरीके की तशरीह करे और तरीके में वक्त के मुताबिक तब्दीलियां लाए। और हाजिर इमाम जो तब्दीलियां लाते हैं दीनदारों, या हाजिर इमाम वक्त के मुताबिक जो हिदायत देते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि मौला जमात में तशरीफ ला के फरमान फरमाते हैं, दूसरा यह है कि इमाम अपने इदारों के जरिया हमें फरामीन और हिदायत भेजते हैं। एक जमाना था जब मौला शख्स के जरिया काम लेते थे। एक दाई होता था, पूरे इलाके को संभालता था। आज कोई एक दाई पूरे इलाके को नहीं संभालता है, आज इंस्टीट्यूशन संभालते हैं। आज तरीका का मैटर है, इमाम ने तरीका बोर्ड रखा है। आज सेहत का मसला है, इमाम ने हेल्थ के इदारे रखे हैं। तालीम का मसला है, तालीम के इदारे रखे हैं। उन इदारों के जरिया जमात को इमाम ज़मान अपनी हिदायत भेजते हैं। तो जब उन इदारों की तरफ से जमातों में हिदायत आती है तो इसमें याद रखना चाहिए कि ये जमाने के इमाम के इरशादात, जमाने के इमाम की हिदायत और जमाने के इमाम की अप्रूवल के मुताबिक होता है, उसके बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिंदारो, आज के अपने वाज में मैं चंद ऐसी रसूमात की तरफ निशानदही करना चाहता हूं जो एक परहेज के तौर पे है। यानी जब हम डॉक्टर से कोई दवा लेते हैं तो डॉक्टर हमें मना करता है कुछ चीजों का, हमें क्या करना चाहिए ये तो हम बहुत बातें करते हैं। आज कुछ ऐसे परहेज जिससे हमें गुरेज करना चाहिए। मौला के जो बात भी मैं आपके सामने पेश करूंगा सब फरामीन पर मबनी होंगे। कुछ बातें जो नहीं करनी चाहिए। हमारे सेरेमनीज, हमारे जो जमाती मनासिक है, जो जमाती रसूमात है, उसके हवाले से हमारी जमात में जो रसूमात हमारे पीरों की तालीमात के मुताबिक हम अंजाम देते हैं, उसकी मैं लिस्ट आपके सामने पढ़ जाता हूं, फिर अपने मकसद पे आता हूं। मसलन बैयत, दुआ, दसौन, है जिंदा कायम पाया, दुआ कराना, छांटा, घटपाट, आब शफा, सुकृत, जुरा, मेहमानी, नांदी, थाड़ सुफरा, अव्वल सुफरा, सताड़ा, बीज, रूहानी मजालिस और दीगर मजालिस वगैरह, ये वो चीजें हैं जो हम अपनी जमातों में करते हैं, अंजाम देते हैं। बात चीजें ऐसी हैं दीनदारों जिसके बारे में इससे पहले जमात को कई दफा बताया गया है। ये महज याद दहानी की बात है कि हमें इनसे परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से, इन चीजों में इन्वॉल्व होने से एक तरफ नाफरमानी होती है, इमाम की नाराजगी होती है, दूसरी तरफ हम अपनी रूहानियत को नुकसान पहुंचाते हैं और गोया नादानिस्ता तौर पे हम ये जाहिर करते हैं कि गोया हमें जमाने के इमाम के फरामीन की कोई खास परवाह नहीं है। सबसे पहली बात जो इसमें अर्ज करना चाहता हूं दीनदारों, किसी पीर या फकीर के कब्र पे जाना या किसी पीर फकीर के साथ किसी किस्म के अकीदे रखना या उन मकबरों पे, उन कब्रों पे जाके मन्नतें वगैरह मानना, मौला का साफ साफ फरमान है कि इस्माइली तरीके में कोई पीर फकीर के कब्र का अकीदा नहीं है। आप कोई पीर की कब्र की बात करते हैं, किसी पीर की कब्र के साथ कोई मन्नतें मानना, हम तो इमाम के मकबरे पर भी नहीं जाते हैं। इमाम तो इससे भी हमारी हौसला शिकनी करते हैं। हमारे पास जब एक इमाम अपना जामा बदलते हैं, जिस दिन दुनिया अपने इमाम के मौत का गम मनाती है, लेकिन इस्माइली जिस दिन इमाम अपना जामा बदलते हैं उस दिन खुशियां मनाते हैं।
11 जुलाई हमारी खुशहालियों में अहम तरीन खुशहाली है या नहीं है? चरागां करते हैं, मजालिस करते हैं, खुशियां मनाते हैं, जहां इजाजत है वहां बहुत जाहिर खुशियां, डांडिया, रास वगैरह सब कुछ होते हैं। लेकिन हम ये नहीं भूलते कि वो दिन हमारे 48वें जामे का इमाम का यौम वफात भी है, लेकिन हम उस गम में नहीं होते हैं, हम इस खुशी में होते हैं कि नूर इमामत हमेशा जिंदा है और हमारे साथ हमेशा मौजूद है। इसलिए हम गुज़िश्ता इमाम के जिस्म की तरफ नहीं, हाजिर इमाम के नूर की तरफ देखते हैं। तो फिर किसी पीर या फकीर के कब्र पे जाना और उनके साथ कोई अकीदतमंदी रखना और कोई मन्नतें सुखा वगैरह करना, ये हमारे तरीके में इसका कोई जवाज नहीं। और इसके लिए दिनदारों मैं आपके सामने फरमान पेश करना चाहता हूं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का। ये कराची का 3 मई 1920 का फरमान है। और मौला ये फरमान फरमाते हुए पहले फरमाते हैं कि इस वक्त जो फरमान हम फरमाते हैं उसे ध्यान देकर सुने, गौर से सुने। जो हैदर शाह की कोठी है, मौला फरमाते हैं, ये हैदर शाह की कोठी खारादर का जो पुराना जमात खाना था उससे मुल्हिका एक छोटी सी कोठी थी। जो हैदर शाह की कोठी है वहां दिया जलाया जाता है और कई लोग वहां जाकर मन्नतें मानते हैं, दिया जलाते हैं और मन्नतें मानते हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बड़े गुनाह का काम है, ये बहुत ही बड़े गुनाह का काम है। उस जगह पर पीर नहीं है और पीर की कब्र भी नहीं है। अगर पीर की कब्र हो तब भी इस्माइली मजहब में बिल्कुल रिवाज नहीं है। मौला ने फरमाया, गौर से सुनिएगा ये फरमान, अगर पीर की कब्र हो तब भी इस्माइली मजहब में बिल्कुल इसका रिवाज नहीं। लेकिन अगर कब्र हो तब भी कोई बात है कि यादी रखते हैं, यहां तो वो भी नहीं है। मौला ने फरमाया इस्माइली मजहब में कब्र हो तब भी बिल्कुल वाजिब नहीं है, वो बुत खाना है। जो भी शख्स कब्र पे जाता है, कब्र परस्ती करता है, कब्र से किसी किस्म का अकीदा रखता है, पीर की कब्र भी क्यों ना हो, मौला फरमाते हैं वो बुत खाना है। इसलिए वहां दिया न जलाया जाए। इस तरह की हजारों कोठियां होंगी, इसमें क्या फायदा, बिल्कुल नुकसान है। इसलिए हम मना फरमाते हैं। बहुत से लोग बंद जाते हैं जब मन्नतें मानते हैं कि भाई माँ बाप का अकीदा है, या मैंने ये मन्नत मान ली है कि भाई बच्चे के बाल उतारने के लिए वहां जाना है, या बच्चा इतना साल का होगा, हजारों किस्म के, मेरी ये उम्मीद पूरी हो गई तो मैं वहां जाकर ये करूं, वहां जाके वो करूं। जिंदारो, खुदा ने दीन हमारे लिए बड़ा आसान बनाया है। खुदा के साथ हम कंडीशन क्यों रखते हैं कि भाई खुदा ने अगर मेरा ये काम किया तो मैं उसका ये काम करूंगा, अगर मेरा काम न हुआ तब भी मैं खुदा की खिदमत अच्छे नेक अमाल तो अंजाम दे सकता हूं। मैं खुदा के साथ क्या तिजारत करता हूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हज पे तशरीफ ले गए, देखा एक बूढ़ा आदमी है, चल नहीं सकता है, 2 जवानों ने उसको उठाया है, घसीटता हुआ चल रहा है। हुजूर ने फरमाया क्या बात है, इसको क्या हुआ? कहा रसूल अल्लाह, इन्होंने मन्नत मानी है कि प्यादा हज करेंगे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने दीन को आसान बनाया है, तुम अपने लिए मुश्किल क्यों करते हो? अक्सर हम मन्नतों में जाके, सुखा मानताओं में जाके अपने ऊपर मुसीबत मोल लेते हैं। जोश में आके मन्नत मान तो लेते हैं लेकिन फिर उसको उतार नहीं सकते हैं और फिर दिल में शक होता है, वसवसा होता है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ मुसीबत बला आएगी। इसलिए दिनदारों, आज इस बात को वाज़ेह तौर पे सुन ले, मौला के फरमान के मुताबिक किसी की भी कोई मन्नत है, किसी पीर की, शाह तुरैल की हो या अमीर पीर की हो या किसी और पीर के दरगाह की हो, तमाम पीरों का पीर
तमाम पीरों का सरदार इमाम ज़मान शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि है और उसका घर जमात खाना है। अगर हिमालय के पहाड़ जितना भी हमारी कोई मन्नत है, हाजिर इमाम के घर पे आके बख्शवा ले और अपने आप को आजाद कर ले। मौला के घर में सब बख्श दिया जाता है। अफ्रीका में जब मौला तशरीफ ले गए तो मौला के हुजूर में गुजारिश की, खुदाविंद हमारी ये मन्नत है। इमाम ने फरमाया नाराज होकर कि इस दफा हम तुमको छांटा देकर बख्श देते हैं मन्नतें तुम्हारी, लेकिन मुस्तकबिल में और किसी भी वक्त किसी की भी मन्नत नहीं मानना। ये फरमान हम सब के लिए फरमाते हैं, इसलिए जमात खाने के अलावा किसी की भी मन्नत न मानी जाए। जो कुछ भी करना है जमात खाने में। कितने लोग आते हैं, पूछते हैं भाई हमारे माँ बाप गुजर गए, माँ का ये अकीदा था, ये मन्नत था, हमारे हवाले कर गया है। अपनी मन्नत हो, माँ बाप का हो या ग्रैंड पेरेंट्स का हो, हाजिर इमाम सब की तरफ से बख्श देते हैं। मन्नत बिल्कुल ना माने, और अगर मन्नत मानी हुई है तो आज ही मुखी साहब के पास आइए, मुखियानी माँ के पास आइए, बख्शवा लीजिए, फिर हम वही कुछ करें जितना हम कर सकते हैं। खुदा ने दीन हमारे लिए आसान किया है, उसको मुश्किल न करे। बिल्कुल यही चीज हमारे शाह मौला के रोजे में है। भाई जब देखो देग बना बना के जर्दे की ले आते हैं। भाई देग शाह मौला हाजिर इमाम के लिए कभी देग होती है? देग किसके लिए होती है? देग हमेशा मरहूम के वास्ते होती है। हमारे पास किसी मरहूम का अकीदा नहीं है, जिंदा इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि को मानते हैं। ये जब पहले सती माँ का रोजा का नाम था और किसी कठियाड़े की, लकड़हारे की कहानी पढ़ते थे, मौला ने उसको भी बंद किया, वो सारी चीजें खत्म हुई। अब मौला अली के नाम पे आके रोजा करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, गिरियाव जारी करते हैं, काफी है। और ये अगर बड़े बड़े देग भर के हम जर्दे की ले आते हैं, कहाँ की तालीम है, किसने बताया है? और हर फैमिली से आप देखें देगे भर भर के आती है, उसका फिर हाल क्या होता है? भाई किसी से पूछिए तो कहा भाई ये शाह मौला का खास तौर पे सास गुजर जाती है तो बहू पे छोड़ जाती है, या माँ अपनी बेटी पे छोड़ जाती है, और वो अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई खतरा नहीं मोलना चाहते हैं, इसलिए वो जारी रखते हैं। अगर शाह मौला का भी आप पे कोई मन्नत है, माँ बाप की तरफ से, सास की तरफ से, उसको भी बख्शवा लीजिए। और ये बड़े बड़े मीठे चावल की, जर्दे की देगे लाने की जरूरत नहीं है, बख्शवा सकते हैं। उसकी वो भी हम बख्शवा सकते हैं। कुछ मन मुराद है तो वो जमात में करें। जो काम हम करें उसके पीछे मानी को भी देखें और ये भी देखें उसका फायदा क्या है। महज किसी के देखा देखी या किसी के कहने के मुताबिक न करें। तो पहली बात, हमारे अकीदे में किसी पीर फकीर की कब्र नहीं, किसी किस्म की कोई मन्नत नहीं। जो अच्छा काम कर सकते हैं करें, खुदा के साथ कोई शर्त न लगाए, ताकि दीन हमारे लिए अच्छा रहे, आसान रहे, काबिल अमल रहे। दूसरी बात दीनदारों, इससे पहले जमातों को ये बात बताई जा चुकी है। मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि मौला के हुजूर में कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाई गई थी और मौला ने इसकी हिदायत दी है। बहुत से घरों में रोट, बीबी फातिमा की थाली, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कुंडा, किस्से कहानियां पढ़वाना, न्याणी खिलवाना, बच्चियों को बुलाकर उनके खिला पिलाकर और उनसे दुआएं मंगवाना, और भी बहुत किस्म की रसूमात घरों में अंजाम दी जाती। मौला के हुजूर में ये बात रखी गई। इमाम ने फरमाया, देखो ये रोट, थाली, कुंडा वगैरह ये उन लोगों का अकीदा है जो गुज़श्ता इमाम में मानते हैं। जो हाजिर इमाम में मानते हैं उनके लिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। और दीनदारों, आज जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये रोट, थाली, कुंडे हमको नहीं करने हैं, मैं आपको पहली मर्तबा बता रहा हूं? नहीं, आपको मालूम है। आपको मालूम है क्योंकि कई सालों से जमातों को मुतवातर ये बताया गया है
लेकिन फिर भी आज घरों में थाली रोट वगैरह होती है। आपको बताया गया कि फरमान है नहीं होना चाहिए, फिर भी होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? इसकी दो वजह है। एक ये कि मौला का तो काम है फरमाते रहते, वो तो हमको पता किस चीज में क्या फायदा है क्या नहीं फायदा, हम ये कहना चाहते हैं, या फिर हम परवाह नहीं करते हैं कि मौला हमें क्या फरमाते। अगर हमें एक दफा पता चल गया, और आज तो कम से कम आप सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सब उर्दू समझ रहे हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। रोट, थाली, कुंडा, किसी किस्म की रस्म घर में करने की मनाही है। इमाम का फरमान है। मैं तरीका बोर्ड की तरफ से जमात खाने के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको बोलता हूं, हिदायत है मौला की, ये चीजें नहीं होनी चाहिए घर पे। जो लोग करते हैं वो नाफरमानी करते हैं। जो इनकी दावतों में जाते हैं, शरीक होते हैं, जो लौंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो लौंग लेते हैं, जो इनमें जाते हैं, इनकी तैयारियों में शरीक होते हैं, वो सब मौला के फरमान के खिलाफ काम करते हैं। ये वही काम है जिस तरह डॉक्टर कहता है एक शुगर के मरीज को कि भाई मिठाई नहीं खाना, तुमको नुकसान होगा। हम कहे भी तुम्हें क्या पता मिठाई खाने में कितना मजा आता है, हम तो खाएंगे। और फिर जब मसला होता है तो इमरजेंसी में जाना पड़ता है। इमाम बेहतर जानते हैं, इसलिए मौला ने फरमाया कि ये इमाम का काम है। हम ये ना समझे कि भाई ये क्यों तरीका बोर्ड या हाजिर इमाम हमेशा ये नहीं करो ये नहीं करो। दीनदारो, इमाम माली की तरह है, जिस चीज की जरूरत नहीं है काट के निकाल देंगे कि इतना रखो जितना तुम हजम कर सको, जितना तुम खा सको। अब बैतुल ख्याल की इबादत है, मौला ने 1 घंटे के वास्ते रखी है ना, क्यों 24 घंटे के वास्ते नहीं रखी है? बहुत अच्छा काम है बंदगी करना, लेकिन इमाम ने 6 घंटा 12 घंटा अलाउ नहीं किया है। ये बिल्कुल विटामिन की टैबलेट की तरह है। डॉक्टर आपको दिन में 1 या 2 खाने का बोलेगा, आप पूरी बोतल खा जाएंगे घर जाके। कभी कोशिश नहीं करना कि भाई अगर 1 विटामिन की टैबलेट अच्छी है तो 100 और अच्छी है, तो हम 100 एक साथ खाकर देखें। अपने हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए खतरा होगा। इमाम ज़मान को जब हमने मुर्शिद तस्लीम किया है तो उसको फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है इमाम की हिदायत के मुताबिक। और इमाम की हिदायत इदारे की तरफ से आती है, उसको समझे और उसको फॉलो करे। तीसरी बात दीनदार अर्ज करना चाहता हूं, बहुत से लोगों की आदत है, हमारे जमात में कुछ लोग मौजूद हैं, या तो वो ये दावा करते हैं कि वो पहुंचे हुए हैं रूहानियत में, या हमारी जमात उस पे लेबल लगा देती है कि ये बहुत पहुंचा हुआ है। इसलिए इबादत बंदगी में मदद के वास्ते, इबादत बंदगी में सहारे के वास्ते, इबादत बंदगी का तरीका सीखने के लिए, बैतुल ख्याल की बातों में आगे जाने के लिए वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उनके अकीदे के मुताबिक पहुंचा हुआ है। दीनदारों, अपनी जमात में हाजिर इमाम ने कोई ऐसा तालिका, कोई ऐसा फरमान भेजा है कि हमने फलान आदमी को मुकर्रर किया है जो बंदगी में बहुत पहुंचा हुआ है, तुम उसके पास जाओ और बंदगी सीखो? अगर मैं आपके सामने खड़े होकर कहूं कि मैं बंदगी में बहुत पहुंचा हुआ हूं, आइए मेरे पास इबादत सीखिए, तो आपको ये पूछने का हक है कि आपके पास क्या सनद है? आपके पास इमाम की तरफ से कोई सनद है तो मुझे बताइए। जिस तरह काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है कि मैं प्रेसिडेंट हूं, तो हमारे पास सनद है मौला की, तालिका है मौला का, हम रिस्पेक्ट करते हैं कि इनको हाजिर इमाम ने मुकर्रर किया। जबकि बैतुल ख्याल के बारे में, बंदगी के बारे में, रूहानियत के बारे में साफ साफ मौला का फरमान है, ये तुम में से हर एक का इनफरादी तौर पे जमाने के इमाम के साथ ताल्लुक है, बीच में कोई नहीं है। इमाम और मुरीद के दरमियान रूहानियत के रास्ते में दूसरा कोई नहीं है। और मौला फरमाते कोई रूहानियत में पहुंचता है तो वो बोल नहीं सकता है, निराला निरंजन कहिए, निराली कहिए कुछ बात, गुंगे सपना पाया समझ समझ पछता। हमें तो मना किया गया
بیت الخیال کا ذکر کرنے یعنی بیت الخیال کے متعلق باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کو فالو کرے۔ مولا کے اس کے بارے میں کتنے فرامین ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی بات مولا فرماتے ہیں، ہمارے جماعت میں کچھ لوگ ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے، یا میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میری چیز گم ہو گئی ہے، تو وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے اور رپورٹ لا کے بتاتے ہیں تمہارا بچہ یہاں ہے، فلان کی روحانی وہاں ہے، فلان کی روحانی وہاں ہے، اور کوئی کہتا ہے مولا ہمارے خواب میں آ کے تمہارے واسطے یہ کہہ گئے۔ مولا کا صاف فرمان ہے، اگر کوئی کہے کہ مولا خواب میں آتے ہیں تو وہ سب جھوٹ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مولا خواب میں آتے ہیں تو وہ سب جھوٹ ہے، ہم کسی کے خواب میں نہیں آتے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ اگر کسی کے خواب میں آئے تو بھی وہ شخص کسی کو بولتا نہیں ہے۔ کسی کو ہمارا لباس پہنا کر کہنا کہ مولا آئے، یہ سب ڈھونگ ہے، ہم نہیں آتے، ایسا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو لوگ روحانیت کی باتیں آپس میں کرتے ہیں، سیکرٹ باتیں ہیں جس کے بارے میں امام نے منع فرمایا، اس کے لیے چند فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ بڑے کانگوا یعنی بیت الخیال کا کام کر کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ بہت ہی خراب ہے، یہ بہت گناہ کا کام ہے، اس جیسا دوسرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ بات کرنے والے کو خدا پوچھے گا کہ اس نے کیوں بات کی، اور پوچھنے والے کو پوچھے گا کہ تو نے کیوں پوچھا، اس وقت کیا جواب دو گے؟ اگر بڑا کام کر کے کسی کو بات کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ اس کام میں داخل ہوتے ہیں اور جو چیز آپ کو ملی ہے اس کے متعلق دوسروں سے بات نہ کرنا، یہ بہت ہی ضروری بات یاد رکھنا کہ اس کی بات دوسروں سے نہ کرنا، اس کام کے متعلق کسی سے بات نہ کرنا، یہ آپ کے اپنے لیے ہے، دوسروں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم اس کام کے متعلق فرمان فرماتے ہیں، آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ اس کی آپ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ عورتوں کو خاص طور پہ مولا نے فرمایا، یہ عورتوں کے لیے فرمان ہے، اپنے خفیہ دھرم کے متعلق یعنی معرفت کی بات کسی سے نہ کرنا، اگر کریں گے تو اپنے آپ کو گنوا بیٹھیں گے۔ روحانی پرابلم ہے، روحانیت کی بات ہے، امام اور مرید کا آپس کا رشتہ ہے۔ پہلے زمانے میں پیر ہوتے تھے مرید اور امام کے بیچ میں، آج امام نے کسی کو پیر نہیں بنایا، امام بھی ہے اور امام پیر بھی ہے۔ جو بھی روحانی بات ہے امام زمان سے کریں، امام نے اس کے لیے کسی کو بھی ذمہ داری نہیں دی ہے اور کسی کو بھی اس کے لیے مولا نے مقرر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد دینداروں، چوتھی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی غیر سے، اسماعیلی یا غیر اسماعیل، کسی غیر سے دورے، دھاگے، تعویذ، پانی وغیرہ نہ لینا۔ پایا جاتا ہے ہمارے طریقے میں ایسا بھی، مشنریوں کے پاس کتنے لوگ آ جاتے، مشنری صاحب کوئی اچھی تسبیح ہم کو دے دے۔ بھائی جماعت میں تسبیح مولا نے دی ہے، جماعت میں دعا و برکات کی سب چیز ہے، آب شفا موجود ہے۔ اپنے دھرم کو چھوڑ کر، پہلے تو اپنے دھرم میں بھی مولا نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی پانی پڑھ کے، اپنی طرف سے کوئی دورا دھاگا کسی کو دے۔ پانی چاہیے، حاضر امام کی دعا و برکات بلیسنگ کے ساتھ آب شفا امام کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، امام کی طرف سے تسبیحات ہمیں دی گئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کسی کو دھاگا چاہیے تو گھٹ پاٹ کا دھاگا جماعت میں ملتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو تعویذ کی ضرورت ہے تو وہ تعویذ کے لیے مکھی کے پاس آئے، جماعت سے لے، جماعت کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکھی کامڑیا کے علاوہ اس کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ مولا کا فرمان، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا جو بات آپ کے سامنے پیش کروں گا
ہر بات فرمان کی بنیاد پہ کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں دوسرے دین والوں سے تعویذ لے کر کبھی بھی اپنے پاس نہ رکھنا، جن کا چہرہ دیکھنا واجب نہیں، ایسے دین سے پھرے ہوئے لوگوں کے پاس سے تعویذ لے کر اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس سے ایمان میں سستی پیدا ہوگی۔ اس طرح کریں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ دو شخص کی اولاد ہوئے۔ آپ دوسرے کی تعویذ لیں گے تو ہمارے دیے ہوئے تعویذ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور آپ کبھی بھی روشنی نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کے دل میں اندھیرا ہوگا۔ آپ ایمان پر یقین نہ رکھیں اور ادھر ادھر دوڑیں، وہ بے ایمانی ہے۔ 7 جگہوں پر پیر رکھنے کا کیا فائدہ؟ یہاں وہاں دوڑنے والے اگر کبھی ہمارے نزدیک بھی ہو تب بھی وہ ہم سے دور ہے۔ ایسے لوگ یہاں آئے تب بھی انہیں شک رہتا ہے، دوسری جگہ پر بھی انہیں شک رہتا ہے۔ ایسے شخص کا ایمان کسی بھی جگہ قائم نہیں رہتا، اس کے دل میں ہمیشہ شک بھرا ہوا رہتا ہے۔ آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو الٹی سیدھی سمجھائے تو اس کی باتیں کبھی بھی قبول نہیں کرنا۔ عام طور پر دینداروں، جسمانی بیماریاں تکالیف آتی ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم پہ تکلیف نہیں آنی چاہیے، مشکل نہیں آنی چاہیے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس پہ کوئی تکلیف آفت مصیبت نہیں؟ دیندارو، امام جو سارے جہان کا مشکل کشا ہے، جسمانی طور پر امام کو بھی بیماری آتی ہے، امام کے گھر میں بھی بیماری آتی ہے، امام کے بچوں کو بھی ایکسیڈنٹ سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ چیزیں دنیا میں ہے، اسے برداشت کرنا سیکھنا چاہیے اور جسمانی مسائل کا جسمانی علاج ڈھونڈے۔ آج حاضر امام نے اتنی زبردست ہاسپٹل بنائی ہے، وہ بیماریوں کا علاج کرنے کے واسطے۔ بچے کو 2 چھینک کیا آ گئی، پیٹ میں درد کیا ہو گیا، یہ ضرور کسی نے کچھ کیا ہے، یہ پڑوسن کی نظر لگ گئی ہے یا فلان کو ہم نہیں بھاتے، اس نے کچھ کر دیا ہے، اب اس کا توڑ ڈھونڈو۔ اب جس کے پاس آپ توڑ کے لیے جائیں گے وہ تو اپنی دکان چمکائے گا نا، وہ تو کسی کا نام آپ کو دے گا، فلان نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، فلان نے یہ کیا ہے، اس کا توڑ یہ ہے، وہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلے گا۔ اگر ان بھگتوں کے تعویذوں سے اور پانی سے سارا علاج ہوتا تو حاضر امام یہ کروڑوں ڈالر کا ہاسپٹل نہیں بناتے، 200-500 بھگتوں کو لا کے بٹھا دیتے کہ ہماری جماعت کا علاج کراؤ۔ لیکن ان ہاسپٹل میں ایک بھی بھگت پانی لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، سب انٹرنیشنلی کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام نے فرمایا 1 نہیں 2 ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرو اور اپنے بیماری کا علاج کراؤ۔ آج دینداروں، ہم ایسی دنیا میں ہیں جہاں ہم پہ دباؤ ہے، پریشر ہے، مادیت زیادہ ہے، دوڑ دھوپ بڑھ گئی ہے، مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اس سے بہت دفعہ انسان ذہنی طور پہ بیمار ہوتا ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ اب ڈپریشن لوگوں کو سمجھ نہیں پڑتا کہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے، تو اس کے علاج کے لیے یہاں وہاں دوڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ دینداروں، جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے، اس طرح ذہن بیمار ہوتا ہے اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی ذہنی مسئلہ ہو تو ذہنی ڈاکٹر جو ہے ماہر امراض کے، ان کے پاس آپ جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، جسمانی پرابلم کے لیے ان کے پاس جائیں، اور ان تمام مشکلات کو برداشت کرنے اور طاقت کے لیے زمانے کے امام سے مدد مانگے۔ البتہ روحانی علاج اپنی جگہ پر ہے، ہم جسمانی علاج کرائے اور روحانی دعائیں امام کی طرف سے، امام کی بلیسنگز ہم لے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈاکٹرز ہاسپٹل فضول ہے اور آپ روحانی ہر مسئلے کے لیے روحانی علاج ڈھونڈنے کے واسطے نکلے۔ روحانی پرابلم کا روحانی علاج ہے، جسمانی مسئلے کا جسمانی علاج ہے، اس لیے حاضر امام ڈاکٹرز کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو اپنا طبی معائنہ کروائیں اور جسمانی مسائل کا علاج کروانے کی کوشش کریں۔ دینداروں، آخر میں 1-2 باتیں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا طریقہ
जिस तरह मैं पहले अर्ज कर गया, खुशी का तरीका है। हाजिर इमाम में मानते हैं, हर तरीके की अपनी एक पहचान है, अपनी एक शनाख्त है। हमारे एक इस मुस्लिम बिरादरी है, शिया तरीके की, शिया मजहब की एक शाख है, इस्ना अशरी हजरात। उनका एक अलामती निशान है। उनका अलामती निशान इस बुनियाद पर है कि उनके यहां गायब इमाम और जो इमाम शहीद किए गए हैं उनका बहुत गम मनाया जाता है। सारी जिंदगी गम में गुजरती है और उस गम की निशानदही के वास्ते उनकी जिंदगी में गम का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी अलामत के तौर पे उनमें काला रंग बहुत ज्यादा नुमाया होता है। वो काले कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं, खास तौर पे मुहर्रम का महीना हो तो काले कपड़े बहुत ज्यादा उनमें पहने जाते हैं। ये उनका एक इम्तियाजी निशान है कि उनके यहाँ गम का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। हम उनके मुकाबले में हैं कि हम हाजिर इमाम में मानते हैं और हम में गम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और हमारा इम्तियाजी निशान ये है कि हम काला कपड़ा नहीं पहनते। जिस तरह इस्ना अशरी दीनी तौर पे, मजहबी अकीदे के तौर पे काला कपड़ा पहनते हैं, इस्माइलियों को ये डिस्करेज किया गया है। 1920 में मौला कराची तशरीफ लाए थे, कुछ औरतें काले कपड़े में मौला के सामने बैठी थी, काली पछेड़ी पहनी थी। इमाम ने फरमाया, ये काले कपड़े पहनकर इमाम के हुजूर में क्यों आए? तुम्हारा दीन जो है, तुम्हारा मजहब खुशियों का है, ये काला कपड़ा गम का लिबास है। इमाम ने फरमाया, काले लिबास वालों के साथ जाके बैठोगे तो तुम्हारा दिल भी काला हो जाएगा। एक शख्स एक दफा मौला के हुजूर में काम किया करता था, सियाह लिबास में मौला के हुजूर में गया। इमाम ने फरमाया, क्या बात है, कौन मर गया है तुम्हारा? खुदाविंद आपकी मेहरबानी है, सब खैरियत से है। तो फिर ये मातम का लिबास, काला लिबास क्यों पहना है तुमने? सरकार गलती हो गई। एक जगह मौला गए, कुछ इस्माइली बच्चों को मौला के सामने पेश किया गया, सबके सर पे काली टोपियां थी। इमाम ने नाराजगी का इजहार फरमाया, फरमान में है काली टोपी नहीं पहनना। उसी वक्त इमाम ने फरमाया, इन सारे बच्चों की टोपियां बदला दो, चेंज कर दो। तो हमारा एक इम्तियाजी निशान है, इस्माइली काले कपड़े नहीं पहनते, जमात खाने तो बिल्कुल नहीं पहनते। इसलिए काले कपड़े पहनने से गुरेज करना चाहिए। जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, उन्होंने भी जो रिसर्च किया है उसकी बुनियाद पे भी वो बताते हैं कि इंसान जिस लिबास, जिस रंग का कपड़ा पहनता है उसका असर उसकी तबीयत पे और उसके मूड पे पड़ता है। उसमें जो लोग काला लिबास ज्यादा पसंद करते हैं या पहनते हैं, उन्होंने लिखा है कि उससे इंसान का जो मूड है उसमें या तो तशद्दुद बहुत ज्यादा होता है या मायूसी बहुत ज्यादा होती है। इमाम ने इन चीजों से दूर रहने का फरमान किया, हम उससे दूर रहे। और एक आखिरी बात दीनदारों आपके सामने पेश करके अपनी जगह लूंगा कि हम बैयत करके दीनदारों एक दायरे में दाखिल होते हैं जो हमारे मजहब का दायरा है। और इस मजहब में इस बात की बड़ी अहमियत है कि हम अपना माहौल बनाते हैं। चूंकि हमारा तरीका ऐसा है जिसको हर शख्स नहीं समझ सकता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपना माहौल हो, उसी माहौल में हम रहें ताकि उसमें हम अपने मजहब पे अमल कर सकें। कभी कभी ये माहौल डिस्टर्ब हो जाता है तो मजहब पे अमल करने की तकलीफ होती है। जैसे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां एक या दो इस्माइली फैमिली सुन्नियों के दरमियान या ईसाइयों के दरमियान या किसी और मजहब के दरमियान रहते हैं तो रफ्ता रफ्ता उन पे असर पड़ता है। इसलिए आप देखिए, हाज़िर इमाम खास हिदायत फरमाते हैं, जो दूर उफ्तादा इलाकों में बड़ी जमातों से दूर रहते हैं उनका खास ख्याल रखा जाए और हो सके तो उन जमातों को जमात से करीब लाया जाए, बड़ी जमातों से। क्यों? कि मजहब पे अमल करने के लिए माहौल का बड़ा गहरा असर है। इसलिए हमारे पीरों ने भी अपने गिनानों में नात पे बड़ा जोर दिया है, तरीके में रहने का। लेकिन दीनदारों, आजकल देखा गया है गो ये बहुत ही जाती मामलात है जमात के, लेकिन मैं उस पहलू की निशानदही करना चाहता हूं जो जाती नहीं रहता, जमाती हो जाता है।
کہ ہمارے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں، معذرت چاہتا ہوں کسی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہو، کچھ آزادی سے جماعت سے باہر شادی کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے طریقے سے باہر، اسماعیلی مذہب سے باہر شادیاں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہونے لگی ہے۔ کہاں شادی کرنا، کہاں نہیں کرنا، لوگوں کی اپنی مرضی کی بات ضرور ہے، لیکن اگر وہ محض اپنی ذات تک محدود ہے تو کوئی بات ہے، لیکن جب کوئی لڑکا یا لڑکی جماعت سے باہر شادی کرتا ہے اور وہ گھرانہ اسماعیلی نہیں ہے یا اسماعیلی نہیں بن سکا ہے یا نہیں بننا چاہتا ہے، بن بھی جاتا ہے تب بھی ماحول بدلتا ہے۔ ہماری بچی اگر شادی کر کے سنی گھرانے میں جاتی ہے اور وہ یہ بھی توقع رکھے کہ اپنے مذہب پہ عمل کرے تو بڑا دشوار ہوتا ہے، اس سے وہ ماحول دستیاب نہیں ہوتا۔ اس سے ہماری جماعت کی جو باؤنڈری ہے اس میں دراڑیں پڑنے لگتی ہے۔ نوجوان لڑکے باہر شادی کرتے ہیں، بہت شادیاں باہر ہوئی ہے۔ جب شادی کی جاتی ہے اس وقت مرحلہ چونکہ جوش کا ہوتا ہے، اس لیے ہوش کی بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہوش میں آتے ہیں تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کاش ہم نے آپ کا مشورہ پہلے سنا ہوتا تو بات کہیں کی یہیں رہ جاتی۔ تو ہم جب اپنے جماعت سے باہر شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہم اپنے ماحول پہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ اپنے لیے ہم نے فیصلہ کیا، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی تقدیر کا بھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ کہاں جائے۔ ہم اگر 10 آدمی ایک کشتی میں بیٹھے، جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں یقیناً میری سیٹ ہے، مجھے بیٹھنے کا حق ہے، لیکن کیا مجھے اپنی سیٹ کے نیچے چھید کرنے کا حق ہے؟ میں کشتی میں بیٹھا ہوں، آپ کہیں گے نہیں ہے، کیوں؟ کرسی تو میری اپنی ہے بیٹھنے کی، لیکن جب میں چھید کروں گا تو پوری کشتی ڈوبے گی، اس لیے باقی 9 آدمی مجھ پہ آبجیکشن لیں گے کہ آپ بیٹھے ضرور، چھید نہ کرے کیونکہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ذاتی معاملہ ہے اور ہم کسی کے ذاتی معاملے کو دخل نہیں دینا چاہتے، لیکن وہ اتنا ذاتی رہتا نہیں ہے، اس میں فیملیز انوالو ہو جاتی ہے، مذہب پہ عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہمارے کتنی باطنی چیزیں ہیں جو خود ہم اپنے جماعت کے درمیان کھل کے بات نہیں کرتے، لیکن وہ باتیں رفتہ رفتہ جماعت سے باہر جاتی ہے، امام زمان کو تکلیف ہوتی ہے اور جماعت کے لیے ایک مشکل مرحلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو جماعت میں دلچسپی نہیں ہے، اگر کسی کو جماعت سے محبت نہیں ہے، اگر کسی کو زمانے کے امام سے کوئی خاص لگاؤ یا کوئی خاص محبت نہیں ہے تو میں ان کی بات نہیں کرتا۔ وہ اگر اپنا مذہب چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، مذہب کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے، لیکن جن کو اپنے مذہب سے لگاؤ اور محبت ہے تو یاد رکھیے مذہب ہم سے قربانی بھی مانگتا ہے اور ہمارا پورا ماحول ہمارا کنٹریبیوشن مانگتا ہے۔ مولا کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پھر اپنی جگہ لوں گا۔ خواتین کو مولانا حاضر امام نے یہ فرمان فرمایا ہے کہ جب آپ کے بچے بڑے ہوں آپ ان کو تعلیم دیں تو مولا فرماتے ہیں ان کی پرورش، اپنے بچوں کی پرورش اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے اپنی دعا بندگی ادا کرے، جماعت کے حدود کے اندر رہے، جماعت کے دائرے کے اندر رہے، جماعت کے قوانین کے اندر رہے، جماعت کے طور طریقوں کے مطابق رہے اور جماعت کے مکمل ممبران بنے۔ تو جب ہم بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، یہ ٹریننگ بھی ساتھ میں رکھیں کہ ہم ہمارے اسماعیلی طریقے کی پریکٹس اور اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا طریقہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کسی بھی طرح اپنی جماعت کو، اپنے طریقے کو اور اپنے طریقے کے ماحول کو نقصان تو نہیں پہنچاتا۔ یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ دینداروں، یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ جماعت نے خاموشی سے سنا، آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا گیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔
صلوات پڑھے دیندار ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔